अच्छा जी, यहाँ से देखें आगे स्टूडेंट, आगे मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में, प्रॉपर जो गाइडलाइन करती हूँ। और कुछ ऐसे है कि आज है जो इस वक्त अब हम टॉपिक करने लगे हैं ना, ये है दैट इज रिलेटेड टू द गॉस एलिमिनेशन मेथड, दैट इज आवर टॉपिक नेम. The general idea, for example, first of all, I will zoom it for you. Okay. In this section, student, we will discuss the Gaussian elimination method that is related to exercise 3.2, section 3.2. First section was related to the solution of the simultaneous equations, system of equations, and graphically represent. And then there you find the three cases. The parallel lines may be intersection on one point unique solution, and also that they are parallel lines or also infinite many solution. वो जो लास्ट वाली एग्जांपल है उसमें आप नो सॉल्यूशन की जगह पे इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस लिखेंगे, ठीक है, वो हर पॉइंट पे आ रहा था उसका. अच्छा जी, अब यहाँ पे है, इन दिस सेक्शन वी डिस्कस द Gaussian elimination procedure. Although it may be appear to be a bit tedious compared with the elimination procedure, and it is generalized able to solve the system of the any size. In addition, इसमें कोई भी साइज हो सकता है, कितनी भी नंबर ऑफ रोज हो सकती है, कितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं. आप उसके अंदर एक मैट्रिक्स को बनाएंगे, मतलब इसमें ये नहीं है, उसमें ये था ना कि आपके पास जब आपने अभी लास्ट में काम किया तो दो वेरिएबल्स से दो इक्वेशन थी, आप उसको इस तरह सॉल्व कर रहे थे, ठीक है. और यहाँ पे ये चीज कही जा रही है कि आपके पास जितनी भी नंबर ऑफ इक्वेशंस या जितने भी वेरिएबल्स हों तो आप उसको एक मैट्रिक्स में जनरेट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे. In addition, the computational aspects of this procedure are somewhat standardized, making it easy programming and computer implementation. General idea देखें, the Gauss elimination method begins with the original system of the equations and transforms it using the row operation. हम इसके अंदर देखिए column operation भी होता है, लेकिन हम we will apply here the Gauss in the Gauss elimination we will apply the row operation, okay, into an equivalent system from which the solution may be read directly. Remember that an equivalent system is one which has the same solution set as the original system. Figure 3.7 shows the in transformation है, change in form है, which is desired in solving the 2 by 2 system है. In contrast to the elimination procedure discussed in the last section, the transformed system still has the dimensions of 2 by 2. The row operation, however, have the transformed the coefficients on the variables so that only one variable remains in each equation, and the value of that variable v1 or v2 in the figure is given by the right side of the equation. Note that the coefficient on each variable in the transformed system. देखिए आपके पास इस तरह से ओरिजिनल सिस्टम होगा, a1x1 प्लस b1x2. पहले आप ax प्लस by लिखते थे ना, अब उसने कहा कि कोफिशिएंट के नाम इस तरह से है कि a1 b1 और xy के नाम x2 y2 कर दें. xy भी हो सकता है, rs भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस पहले वेरिएबल का नेम आपने x1 रखा, दूसरे वेरिएबल का नाम आपने x2 रख दिया. Similarly, a to x1 second equation है plus b to x2 is equal to c2. That is the original system. Gaussian में जब आपने इसे transform करना है, then you have to convert it into the from equations to matrix form. Like this way, student, a1 may be, what is the a1? Okay, and yeah, there you write the b1, then you write the a2, and then you write here the x b2. On the right hand side पे तो v1 v2 है, यहाँ पे जितना अच्छा explain नहीं है, I will explain it. मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ. एक तो कुछ है बेसिक रो ऑपरेशंस के बारे में कुछ डिस्कशंस हैं. बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन में बी मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है, दोनों साइड्स पे आप किसी भी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और नॉन जीरो मल्टीप्लाई बाय वन इक्वेशन में बी एडेड टू अनदर इक्वेशन, ठीक है. द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन में बी इंटरचेंज, मींस ऑर्डर ऑफ इक्वेशन यानी कि आपस में आप रोज को जो है ना इंटरचेंज कर सकते हैं. Solve the following system of the equations by the Gauss elimination method, and that is the 2x minus 3y is equal to minus 7 and x plus y is equal to 4. That is a 2 by 2 system है. दो इक्वेशंस हैं, बाय चांस इसके अंदर लाजमी नहीं है, मैंने आपको बताया हुआ, लेकिन ये सिस्टम जो है वो स्क्वायर कहलाता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है सेम हो. अच्छा, अब इसके अंदर इसको मैं सोल्यूशन से मैं अपने स्टाइल से करा के दिखाती हूँ.
ठीक है। अच्छा जी, इसकी एक्सरसाइजेस तो मुझे मुझे एक्स्ट्रा में डालनी चाहिए थी ताकि आप सोल्यूशन कर सकते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, इसके बारे में जरा गॉस एलिमिनेशन के बारे में कुछ और रीडिंग कर लेते हैं ताकि फिर एग्जांपल आपको स्टार्ट कराई जाए। Given the 2 by 2 system of the equations, create an array which contains the variable coefficients and the right side constant as shown below a1 b1 a2 c2. ठीक है, transform the coefficients into diagonal form of one column to ये भी अब बताने वाली बातें हैं। और create the zero in the column by multiplying the row found in the step। चलें जी, खैर स्टूडेंट ये कुछ वो इतना खास नहीं है, लेकिन आई विल नाउ आई एम गोइंग टू, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली एक्सरसाइज आपको इक्वेशन कराती हूँ। 2x + 5y इज इक्वल टू 10 और 3x - 4y इज इक्वल टू -5। ये एग्जाम्पल लेते हैं और इसको हम करके, तो इसके अंदर आपको करके इसका मेथड जो है वो स्टूडेंट करके दिखाते हैं कि ये कैसे आपके पास आएगा। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने एग्जाम्पल को पिक किया है इसको। अच्छा, यहाँ से मैं इसको ले जाती हूँ यहाँ से। ठीक है, ये लिखा मैंने 2x + 5y 2x + 5y is equal to 10 और दूसरा लिखा मैंने 3x - 4y is equal to -5। अच्छा जी, अब ये नहीं, इसको बाय सॉल्व करना है गॉस एलिमिनेशन मेथड के जरिए, और मैं इसको अब यहाँ पे मैक्सिमाइज कर देती हूँ। Yes, okay, that is the Gauss elimination method। अच्छा जी, ये स्टूडेंट मेथड है। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपने सोल्यूशन में क्या किया कि सबसे पहले आपने इन्हीं इक्वेशंस को चले लिखा 2x + 5y is equal to 10 and then 3x - 4y is equal to -5। ठीक है, that is your equation number maybe 1 and that is equation number 2। okay, now you have to convert it into the matrix form। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में आपने लिखने के लिए आपने लिखा यहाँ पे इन मैट्रिक्स फॉर्म। जी स्टूडेंट नसीर, आपका बाकी भी स्टूडेंट्स हैं, उनका क्यों नेट का क्यों, नसीर आप क्यों डिस्कनेक्ट हो रहे हैं स्टूडेंट भी, आप बाकी स्टूडेंट भी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें 2x + 5y इज इक्वल टू 10 है, 3x - 4y इज इक्वल टू -5 है। आपने इसे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लेकर आना है। ठीक है, तो अब आप देखें, सिर्फ कोफिशिएंट को देखेंगे आप लोग। ठीक है, कोफिशिएंट को 2 लिखा मैंने, ये 5 लिखा, सिर्फ कोफिशिएंट 3, ये -4। यहाँ पे मैंने आगे जो है ना इसको कन्वर्ट कर दिया है x एंड y की फॉर्म में, और राइट साइड पे मैंने लिख दिया है 10 एंड -5। ठीक है, ये देखिए, दैट इज सिस्टम इज कन्वर्ट फ्रॉम द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जी जी स्टूडेंट, कौन स्टूडेंट बात कर रहे हैं? हाँ जी बोले। ये जितने भी स्टूडेंट इस वक्त नजर नहीं ना आ रहे हैं, इनकी एब्सेंट मार्क हो रही है।
अच्छा जी, अच्छा मैं अब यहाँ से वापस से इसी स्लाइड पे आ रही हूँ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट के हमने ये जिसको मैं चुप कर जाती हूँ ना, इसका मतलब है कोई ना कोई स्टूडेंट एंटर हो रहा है, कनेक्शन डिसकनेक्शन, देखिए ये काम नहीं करते रहने मैंने कि मैं वापस उसको वो पेन को साइड पर करके तो फिर दोबारा से उसमें आप लोग अपना नेट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, उस कंडीशन में लेकर आए। बहुत सारे स्टूडेंट यही होता जा रहा है कि डिस्कनेक्ट कनेक्ट डिस्कनेक्ट कनेक्ट। अब मैं अदरवाइज तो ये है कि मैं इसी काम पे फिर लगी रहूंगी, स्टूडेंट्स को ऐड करती जाऊँ, तो मैं मेरा ना लेक्चर बहुत डिस्टर्ब हो रहा है इस चीज में, ख्याल करें जरा। अच्छा यहाँ पे जरा देखिएगा कि आपकी इक्वेशंस जो है और फिर उसमें ये है कि इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से लेक्चर भी जो है वो आपका डिस्कनेक्ट होता जाता है बार बार। मैं खुद थोड़ी देर खामोश होके तो उसको साइड पे करी थी क्योंकि पेन डिवाइस है तो उसको दूसरी तरफ जाने के लिए मुझे उसी में नहीं रहना पड़ता। अच्छा जी यहाँ देखें 2 5 है, 3 है, -4 है। मैंने जिस अगर इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में मेरे पास AX = B, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया 2 और 5 इसके कोफिशिएंट लिए और ये 3 एंड -4 ये चीजें ली हैं इनटू XY = राइट हैंड साइड है 10 - 5 है, ठीक है। अब बेसिकली सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये होता है, सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स जो है ना वो ये होता है AX = B, ठीक है। अच्छा अब जब ये चीज आ जाती है आपके पास AX = B, तो अब हम यहाँ से मैट्रिक्स के नाम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे कि जो A मैट्रिक्स है दैट इज इक्वल टू 2 5 एंड 3 - 4 और x जो है वो आपके पास आ जाता है कैपिटल X, स्टूडेंट इसे लोग लिखते हैं उसके ऊपर नहीं है, कैपिटल X करें लिखने आप, कैपिटल X कर दें इसका नाम, तो ये हो जाता है स्मॉल XY जो भी। यहाँ पे अगर XY की जगह पे इस खैर मैं अभी बात करती हूँ, और यहाँ पे B जो है ना स्टूडेंट B, ये आपकी राइट साइड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये आ जाता है 10 एंड -5, ठीक है, ये इस तरह से आ जाता है। अच्छा मैं अब आपसे जहां तक बात करने लगी हूँ ना स्टूडेंट, वो ये है कि ये देखें यहाँ पे अगर वेरिएबल्स XY की जगह पे RS भी होते तो मैं फिर यहाँ पे RS लिख देती। अगर यहाँ पे X1 X2 होता तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम X1 X2 रख देना था, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मैंने कहा कि मैंने इसको ऑगमेंटेड गॉस एलिमिनेशन फॉर्म में लेकर आना है इसे, ठीक है। तो गॉस एलिमिनेशन फॉर्म जो है उसके लिए मुझे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना होगा, Gauss elimination method, and also you can use it that the by row elementary operation, ठीक है। Gauss elimination के लिए हम एक augmented matrix जनरेट करते हैं। augmented matrix इसकी हेल्प से बनेगा, जो हमने 3 चीजें निकाली हैं उसकी हेल्प से बनेगा। augmented matrix जो है वो इस तरह से होता है A, या आप इस पे जो है A/= हाँ जी, इसको लोग टिल्डा भी कर देते हैं किस तरीके से, ठीक है। और ये इस तरह से, और दैट इज इक्वल टू आपने इस तरह से इसके लिखना है A/B, ये इस तरह से लिखेंगे आप, ठीक है। ए टिल्डा जो है ना ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को डिनोट करता है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता। अच्छा अब यहाँ से देखें ये चीज आ गई आपकी इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है, ठीक है। अब ये मैंने इसके जरिए ये मैं गॉस एलिमिनेशन की फॉर्म में आने के लिए जो मुझे चीजें चाहिए थी ना, AX = B, और यहाँ से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सबसे पहले फॉर गॉस एलिमिनेशन मेथड के लिए आप सबसे पहले एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जनरेट करते हैं दैट इज इक्वल टू A/B, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर दिया, ठीक है। A की वैल्यू है 2 5 3 -4, मैंने यहाँ पे आप कहते हैं तो बाय पुटिंग AB वैल्यूज भी लिख देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि हमने किया क्या था। AB वैल्यूज जो है ना मैट्रिसेस की, या उनका नंबर भी क्वेश्चन का लिख सकते हैं। अच्छा जी ये तो A टिल्डा है दैट इज इक्वल टू, अब मैं A/B ना इसको ठीक कर रही हूँ, 2 5 3 -4, 2 5 3 -4, ये स्लैश की जगह पे हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और ये B का रिजल्ट आप लिखेंगे 10 - 5, ये इनफैक्ट इक्वल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, इक्वल। अच्छा अब यहाँ पे अब ये हमारा मैट्रिक्स जनरेट हो गया है, अब हमारा कोई खास काम नहीं रह गया है। अब आपने इसकी एक फॉर्म बनानी है। फॉर्म क्या बनानी है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसको हम पिवट एलिमेंट्स कहेंगे,
इसको ये डायगोनल एलिमेंट यूज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली जो दोनों लाइंस हैं आप, ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये आपके डायगोनल कहलाता है। ठीक है कि इसका देखें ना, ये A11 है, ये A12 है, इसका अगर मैं साइज बताऊं, यानी कि A11 12, A21 22। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट के साइड पे आपको लिख के दिखा देती हूँ कि ये अगर मैं इसका नाम A रखती हूँ ना, तो ये इस तरह से होगा, A फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम M क्रॉस N, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये जो है ये मेरे पास डायगोनल होगा जिसके अंदर रोज और कॉलम सेम, A33 A44 इस तरह, ये डायगोनल की एंट्रीज होती है जिसके अंदर के नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स का साइन जो ऑर्डर है वो सेम आ रहा होता है। अच्छा अब यहाँ से मैंने करना क्या है स्टूडेंट, इसको 1 करना है, इसको भी 1 करना है, और इसका एक मेथड होगा उसके जरिए करना है। और जितने भी इसके अंदर जितनी भी, मैं दोबारा से आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि ऐसा मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि ये 1 और ये 1 और ये जो नीचे लोअर ट्रायंगल ये 0 होनी चाहिए, ऊपर वाली नॉन 0 होनी चाहिए। ठीक है इसको, यानी कि इसको हम अपर ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है ये बनानी है बेसिकली कि अपर ट्रायंगल नॉन जीरो रहे, यानी कि दरमियान वाली ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये 1 होनी चाहिए ऊपर। अब देखिए अभी तो 2 by 2 है ना, तो एक ही डिजिट नजर आ रहा है। अगर मेरे पास 3 by 3 होगा, यानी कि इस तरह होगा 1 स्टार स्टार 0 1 स्टार 0 0 1। ठीक है ना, अगर 3 by 3 का मैट्रिक्स आता है ना, ये देखिए ये सारे का सारा आपका रफ वर्क है, मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये 3 by 3 है ना, तो ये 3 है, और नीचे वाली जो भी ट्रायंगल बन रही है ये 0 होगी और ऊपर वाली नॉन जीरो ट्रायंगल होगी। ठीक है बाई चांस इधर तो डिजिट ही 1 है ना, तो इसलिए वो ट्रायंगल जो है उसके अंदर सिर्फ एक ही डिजिट नजर आ रहा है, और ऊपर वाली ट्रायंगल में भी आपको बस एक ही डिजिट नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें इसी तरह 4 by 4 में भी दरमियान में सारा 1 1 लेकर आना है, ऊपर वाली जो मर्जी वैल्यूज रहे, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी, नॉन जीरो रहे। लेकिन अगर फर्ज करें यहाँ पे 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, एक भी अगर उस रो के अंदर 1 के अलावा कोई 0 आ गया तो कोई उसकी बात नहीं है, वो 0 रहे नॉन जीरो रहे, लेकिन ये उसमें कोई ना कोई नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन नीचे मस्त है कि 0। अच्छा अब उसका प्रोसीजर क्या है, अब हम इसकी तरफ ही आते हैं। ये स्टूडेंट जो होगा ना, ये आपका पिवट एलिमेंट कहलाएगा। सारे स्टूडेंट एक ही मेथड से करेंगे, हर कोई एक अच्छा भी इधर 1 1 लेकर आना है मैं अपनी मर्जी से ले आऊं तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है अब ये है पिवट एलिमेंट फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। ठीक है पहले ये होगा पिवट एलिमेंट फर्स्ट रो के अंदर, फिर सेकंड रो के अंदर ये हम पिवट एलिमेंट बनाएंगे, लेकिन पहले हम इसका काम कर लें। ठीक है अब यहाँ पे मैं लिखूंगी कि रो 1 को आपने डिवाइड कर दिया 2 के साथ, उसके साथ कर देना क्योंकि यहाँ पे हमें 1 लेकर आना है। ठीक है ये वाली पहली पूरी रो 1 है, इसको मैंने 2 के साथ डिवाइड किया। तो थोड़ा सा इधर करके लिख लेती हूँ ताकि ना स्पेस। अच्छा ये इक्वलेंट को इस तरह से लेकर जाएगा स्टूडेंट। ठीक है नॉट एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, लेकिन चलें इक्वल भी लगा लें तो कोई बात नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। 2 by 2 5 by 2 10 by 2। ठीक है एंड द रिमेनिंग वैल्यूज आर 3 -4 एंड -5। ठीक है देन आई गेट 2 by 2। ओके बाकी जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं उसे आप कैंसिल कर दें, बाकी जो फ्रैक्शन में चाहे वो फ्रैक्शन में रहने दें, क्योंकि जब आप इसे पॉइंट में लेकर जाएंगे ना तो अक्सर जो है वो फिर आपका आंसर जो है थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए चले मैं इसको ऐसे रहने देती हूँ। 1 5 by 2 5 3 -4 एंड -5। दैट इज अच्छा। अब देखिए मैंने इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, ये मैंने अभी तक जो है ना अपना पॉइंट जो है ये गेट कर लिया। अब मैंने इसकी हेल्प से यहाँ पे 0 लेकर आना है। ठीक है लाजमी है कि आपने इसकी हेल्प से लेकर आना है, किसी और वे से नहीं लेकर आना है। इस कॉलम ये जो पिवट को 1 किया है ना, इसी से ऑपरेट करते हुए रो 1 के साथ इधर 0 करना है। ठीक है तो अभी देखें, हाँ जी यहाँ पे देखें ए ऑगमेंटेड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यहाँ देखें अब मैंने यहाँ पे 0 लेकर आना है ना, तो मैं ये कहती हूँ कि अगर यहाँ पे रो 2 के अंदर इसी की हेल्प से, इसी ऊपर वाले से, तो R2 काम जिस रो में होगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे। R2 में आप माइनस कर सकते हैं अगर 3R1। ठीक है रो 1 के साथ अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँ और फिर इसमें से माइनस कर दूं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है अब कैसे, अच्छा अब मैंने देखिए जरा खुला खुला करके लिखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंजेस्टेड लिखेंगे ना तो वो राइटिंग वाइज अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर वाली रो में तो कोई काम नहीं होगा लेकिन नीचे वाली रो में काम होगा। देखिए रो 2 इस स्टेटमेंट को मैंने करना है, रो 2 3
-3 और ब्रैकेट में रो 1, इसी का ऊपर वाला डिजिट 1। सिमिलरली अच्छा जी, सिमिलरली आप देखें, ये है रो 2 है आपके पास -4, -3, रो 1 है 5/2। ठीक है। सिमिलरली थर्ड में देखें, -5 रो, -5, -3, रो 1 जो है वो है 5। ठीक है। देखिए हर एक का ऊपर वाला डिजिट रो 1 कहलाएगा। ठीक है, like this way. Okay, now I solve it. 1 5/2 and 5. 3 minus 3 is 0. Okay, and now -4 minus 15/2. I will solve it then. Minus, ये क्या स्टूडेंट आप लोग एक दफा जरा सा ना नेट को जरा सा सही तरीके से करके स्ट्रांगली। अच्छा जी, अच्छा अब यहाँ पे देखें, हाँ जी, -5 और फिर -15। ख्याल रखना है आपने। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास ये चीज आ गई। ठीक है, अभी मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूंगी। ओके, 1 5/2, थोड़ा सा इसके लिए 0, और यहाँ पे देखें स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -8 -15/2 -20। ठीक है, थोड़े स्टेप ज्यादा लग जाएंगे लेकिन कोई बात नहीं। उसको 1 5/2 and 5 0, and this value is -23/2 and -20। ओके, ओके ना, अब मैंने इस 1 से इसको 0 कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 1 लेकर आना है। ठीक है ना, डायगोनल के एलिमेंट्स जो थे, नाउ इट इज द पिवट एलिमेंट। पिवट एलिमेंट को उसी के साथ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो रो 2 को हम पूरे के साथ फिर डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे मैं लिखूंगी कि R2 को डिवाइड करना है ना आपने स्टूडेंट, R2 को डिवाइड करना है -23/2 के साथ। तो इसका मतलब ये है, यही चीज असल में इनफैक्ट इक्वल है कि मैं इसको उल्टा दूं ऊपर, यानी कि 2/-23 के साथ -2/23 कर दें, ऊपर कर दें या नीचे कर दें, -2/23 के साथ मैं R2 को मल्टीप्लाई कर दूं। दोनों की चीजें सेम है। अगर कोई स्टूडेंट कह रहे हैं नहीं भी मैंने इसको डिवाइड ही करना है, तो बेसिकली तो डिवाइड ही करना है, लेकिन हम ये कह रहे हैं अगर फ्रैक्शन आ रही है ना, तो वो उसको आप उल्टा के तो उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो जिसमें जिस वक्त आपने प्रोसीजर करना है ना, उससे पिछले वाले में आपने ये स्टेप लिख देना है राइट साइड पे रो का। ठीक है, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का। अच्छा जी, 1 है, मैं थोड़ा सा फासले से लिख रही हूँ क्योंकि नीचे वाली लाइन में थोड़ा सा ज्यादा वर्क होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -23/2/23 इंटू 0। देखें, माइनस ऊपर हो नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, -2/23 R2। तो सिमिलरली मैंने लिखा यहाँ पे भी -2/23 मल्टीप्लाई बाय R2 -23/2। ठीक है, बेसिकली हमने यहाँ पे 1 लेकर आना था ना, उसके लिए हमने -2/23 मल्टीप्लाई बाय -20। अच्छा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे इस तरह से आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ से देखें, ये ऑगमेंटेड क्या लाइन आप लाजमी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, रो 2 को मैंने 2/-23 के साथ, सॉरी -2/23 के साथ आप कर दिया। 1 5/2 5, ये 0 टर्म आ गई। ठीक है, ये आपने कैंसिल किया इसको, तो ये पॉजिटिव माइनस माइनस पॉजिटिव 1 आ गया, और ये जो टर्म है ये आपके -40/23 आ गई। मैंने फ्रैक्शन में पॉइंट में नहीं लिखा, पॉइंट में असल में प्रॉब्लम भी आ जाती है कि असल में पॉइंट में ये चीज है, अगर आपने
1 निकालना है तो वो 0.99 का रिजल्ट भी दे सकता है। मतलब आपकी अगर आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं ना तो वहां पे थोड़ा सा फर्क आ जाता है 1 डिजिट का या तकरीबन लेस देन 1 डिजिट का। माकड़ी है सर हुआ है Já foi de uma estação armazenada, para aquele sempre ali o perder agora سشي जी जी जी, स्टूडेंट स्टूडेंट صورتك स्टूडेंट كمان नसीर ده नसीर الرفلنس شيء नसीर मतलब स्वीट زي كده ठीक शो जी और स्टूडेंट ده नसीर, आपको आवाज नहीं هنا आ रही स्टूडेंट। الصور سدي مكمل بتاعي دير زيادتي دير بانتهاء بانتهاء ما يوكزن ده मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जी स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम अब आ रही है। नहीं तो ये सारे लेक्चर के दौरान आती रही है ना? जी मैम अभी थोड़ी देर के लिए हुआ था मसला, अभी हो गया ठीक। अच्छा अच्छा, ठीक है, शायद वो टच से हो गया। अच्छा जी जी स्टूडेंट, हाँ जी। अच्छा, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ कि यहाँ पे आपके पास है 1 1, ये एलिमेंट आ गया, ठीक है। और ये 0 जो था, ये एलिमेंट हमने हमने इसको अपनी मर्जी से नहीं करना। हर एक में आपने पिवट एलिमेंट पहला बनाएंगे, उसको 1 करेंगे, उसी डिजिट से पूरी रो को डिवाइड कर देंगे, आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप उसको इस तरह से, मतलब 1 के बाद आपने उसी रो के साथ नीचे वाली रो को आपने माइनस करना है और आपके पास 0 आएगा, ठीक है। इस तरह से 1 के बाद आपने 0 किया, फिर आपने इस डिजिट को 1 करना है। पहले हमने इसके स्टेप्स के सॉल्यूशन पॉइंट्स कुछ किए और फिर हमने इसमें 1 करके दिखा दिया, ठीक है। और यहाँ से आपके पास ये चीज आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसे दोबारा से जो है ना, आप उसके अंदर लेकर जाएंगे। ये तो स्टूडेंट आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हम इसे इन द बैक सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको बता रही थी कि जी आप इसे दोबारा से उसके फॉर्म में लेकर आएंगे स्टूडेंट, इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आएंगे और इसको हम कहते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन फॉर्म, ठीक है। बैक सब्स्टिट्यूशन के अंदर आप इसे क्या करते हैं, इसी सिस्टम को आपने इन इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट कर देना है, इन इक्वेशंस, ओके। ये आपके पास था x था, ठीक है। 1 इंटू एक्स एक्स ही हो गया, प्लस 5/2y इज इक्वल टू 5। और दूसरा है वो है 0x है तो x नहीं जी, यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू -40/23, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर है 3 और ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 4।
वहाज म्यूट करें अपने आप को स्टूडेंट। अच्छा यहाँ पे देखें, अच्छा ये मैं आपसे बता रही थी y इज इक्वल टू -40/23, ठीक है। यहाँ से आपने इसको इक्वेशन में लिखा 1 के साथ मल्टीप्लाई बाय x है तो उसे x लिख दिया आपने, x + 5/2 y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे x है ही नहीं है, y इज इक्वल टू -40/23 लिखा आपने। हमने ये कहा कि आपने इक्वेशन नंबर 4 को 3 में पुट कर देना है बाय पुटिंग, ताकि आपके पास y x की इक्वेशन निकल आए, बाय पुटिंग 4 इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 3। सो x + 5/2 y की वैल्यू है -40/23 इज इक्वल टू है 5, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि ये मेरे पास बैक सब्स्टिट्यूशन आ रही है, मतलब क्वेश्चन में पूछा गया हो या ना कि पूछा गया हो, आपने मस्ट है कि बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, फिर ही आपके पास एक्स और वाई के रिजल्ट्स आएंगे ना। बेसिकली ये हम कह रहे हैं कि साइमल्टेनियस मेथड से ना करें, आप गॉस एलिमिनेशन से भी साइमल्टेनियस मेथड की तरह ही एक्स वाई जेड की वैल्यूज जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देखिए स्टूडेंट, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो -20 और 5 जो है वो आ जाता है -100/23 इज इक्वल टू 5 आ जाता है। मैं इसको राइट साइड पे ले जाती हूँ ताकि 5 + 100/23 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर मैंने इसका एलसीएम ले लिया क्योंकि बेसिकली मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो वो आ जाती है मेरे पास 23 × 5 कितना होता है स्टूडेंट, 5 3 = 15, 1 2 115 + 100/23, तो ये आपके पास आ जाता है 215, x इज इक्वल टू 215/23, ठीक है। अच्छा, और y जो है वो ये मेरे पास आ गया है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नीचे करती हूँ ताकि सामने सामने रहे एक्स वाई के पॉइंट्स। जी, अब जी स्टूडेंट, अब मेरे पास जो है सोल्यूशन सेट है वो है x, y, और हमने कहा कि साइमल्टेनियस के बगैर भी हमने जो है x है 215/23 और y जो है वो मेरे पास है -40/23, ठीक है। ये सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, कौन सा वाला क्वेश्चन था ये हमारा, 2x + 5y इज इक्वल टू 10, यही था मेरा ख्याल है, ठीक है। 2x + 5y इज इक्वल टू 10। जी, इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिखी क्वेश्चन की, 2x + 5y इज इक्वल टू 10। दैट यहाँ पे देखें आपका आंसर आ गया, दैट इज योर वेरिफिकेशन, जो आपने लाजमी तौर पे वेरीफाइड करना होगा। तो 2 है, x की वैल्यू है 215, आपने मतलब जो है बल्कि यहाँ पे लिख लें एट x इज इक्वल टू 215/23 और y की वैल्यू -40/23। तो 2x की वैल्यू है 215/23 + 5 -40/23 इज इक्वल टू 10। पहली इक्वेशन को आप मैंने लिख लिया है। अच्छा जी, इसका तो रिजल्ट काफी वो आ रहा है जी, 2 5 10, 1 आ गया। स्टूडेंट कोई मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशन में, मैं पहले ही बता दूं, लेकिन ये है कि मेथड यही है कैलकुलेशन में, क्योंकि हमारा मैंने कैलकुलेटर नहीं यूज किया। 2 5 10, 1 2 1 2 3, 2 4 20/23 प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया आपके पास 200/23 इज इक्वल टू 10। 430 - 200 जो है वो आ जाता है आपके पास 230। शुक्र है कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन जो है वो आपकी ठीक ही आ गई है जी। एलसीएम लेते हैं हम, इसका 23 है, 430 - 200 इज इक्वल टू 10। सो 430 - 200 जो है ना वो आ जाता है 230/23 इज इक्वल टू 10। तो ये इसके साथ कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 10 आ जाता है। ये वेरीफाइड हो गया। तो यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन का जो प्रोसीजर है, ये मैं अभी आपको एक नजर सारा दिखा देती हूँ कि आप लोगों ने जिस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, यहाँ तक आपने किया है, लेकिन यहाँ तक गॉस एलिमिनेशन सॉल्व हुआ है, लेकिन सोल्यूशन सेट नहीं मिला, अभी आंसर नहीं मिला। हमने जो साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व किया था वो मतलब आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज ठीक है निकल आई, वही काम इसमें भी करना है, एक्स वाई की वैल्यूज ही निकालनी है। लेकिन ये जो मेथड यहाँ तक करते हैं, फिर आप इसे इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, फिर वहां में सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज को
आपस में एक दूसरे के साथ, तो वो आपकी बैक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही यही है कि वापस उसकी बैक सब्स्टिट्यूशन करें। y को आपने ऊपर वाली वैल्यू में पुट किया, आपके पास x का रिजल्ट आ जाएगा। x की वैल्यू और y की जो भी आएगी उसे आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 के अंदर अपने क्वेश्चन में आप लोगों ने पुट कर देना है। ये क्वेश्चन की आपकी पहली इक्वेशन थी, उसके अंदर आपने पुट कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ से आप लोग आगे देख सकते हैं स्टूडेंट के ये चीज तो हो गई। अच्छा, अब देन द क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी यूज द गॉस एलिमिनेशन मेथड, कि गॉस एलिमिनेशन मेथड को ही क्यों यूज किया जाएगा। गॉस एलिमिनेशन का फायदा ये है, प्रॉफिट ये है, दैट इज अ प्रॉफिट दैट वी कैन डील द मोर वेरिएबल्स एंड मोर नंबर ऑफ इक्वेशंस, मोर नंबर ऑफ कॉलम्स, वी कैन इजीली डील इट। ठीक है, जब यहाँ पे आपके पास यानी कि 5 इक्वेशंस 5 वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना पड़ जाए ना, तो वो फिर काफी प्रॉब्लम के अंदर चीज आ जाती है। ठीक है, तो इसका यानी कि जैसे देखें ना कि मेरे पास है, अगर फर्ज करें मेरे पास आ जाता है, अगर हाँ जी स्टूडेंट, अगर मेरे पास इस तरह से आ जाता है, खैर मैं जरा से एक मिनट, अच्छा जी, अगर मेरे पास स्टूडेंट ये आ जाता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर प्लस एस प्लस क्यू इज इक्वल टू 20, इस तरह करके आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से फिर मेरे पास ये वाली इक्वेशंस भी नीचे भी इसी तरीके से आ रही हैं। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये उसको इतनी ज्यादा इक्वेशंस में लेकर जाएगा, यानी कि मे भी ये यहाँ पे 2r कर दें, यहाँ पे 7s कर दें, यहाँ पे जी आप कौन सा स्टूडेंट है, अच्छा जी ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये चीज ही मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे जस्ट लाइक आपने ये कहा कि 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, यानी वेरिएबल्स के नाम में भी कुछ भी आ गए। ठीक है, इस तरह करते करते आप उस सारे वैल्यूज को ना इजीली आराम से आप लोग जो है ना वो उसको डील कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे से आते हैं दोबारा से अटेंडेंस की तरफ मैं आ जाती हूँ और मैं बता देती हूँ कि कौन सा स्टूडेंट जो है जिसकी एब्सेंट लगी है। मैं सिर्फ नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स की बात करती हूँ जी। अब्दुल्ला दानिश चौधरी जो है वो प्रेजेंट हुए थे या नहीं हुए थे बताएं, वैसे तो रिकॉर्डिंग में भी देखूंगी। जी अब्दुल्ला दानिश, नो वॉइस। अच्छा जी, कवर मैं सामने ओपन ही कर लेती हूँ इसको जी। अब्दुल्ला दानिश नहीं है हमारे साथ, आज वो एब्सेंट है। कंवर मोहम्मद तैमूर, तैमूर